नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी ऑफ कोर्स जॉइंस अस फ्रॉम कोलंबो। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम वंदे मातरम। वन, वंदे मातरम। वंदे जय मातरम। हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। बिल्कुल प्रदीप जी सर। और मैं जय इस भवानी। वक्त नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ यानी आप लोगों के साथ। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी विषय हैं, हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, सब दो चीज़ें हैं, दो या तीन चीज़ें आज हुई हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। मतलब ज़्यादा क्या है कि एक तो नरेंद्र मोदी जी का जो टूर है यूएसए का, आई थिंक ही इज गोना लैंड ओवर देयर ऑन 22nd of June, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एग्जैक्टली। यस, यस, 22 जून यस। को। और इस बार ये कहा जा रहा है कि उनकी जो मतलब जो जो क्राउड होगा इस बार, wherever he is going to hold a rally of NRIs, is going to be huge, is going to be humongous. He has a point to prove. Apart from that, India signed a $5.2 billion deal with Germany for 5 new submarines, and that I think is fantastic. And that, by the बिल्कुल way, सर। has set the whole American defense establishment up by the ears, because they feel that either they support India totally in everything, or else the Indians might go elsewhere, because the Americans were trying to sell us their submarines. But the Indian Navy decided we didn't want American junk. We decided to buy the latest submarines from Germany, and and and, एग्जैक्टली सर। and the Americans, I think, do realize that you know you can't push over the Indians anymore. That is the most important thing. Pradeep ji. बिल्कुल सर। इवन here in Colombo, Sri Lanka, there is talks about how India and China is waging kind of conflict, an undeclared kind of a war, posturing and Chinese aggression. These things are being talked around here in Sri Lanka. But the main factor is that India needs to take care. Now, everybody world over agrees that after Narendra Modi government came, the northeast borders have become more secure because we have built roads up to the Chinese border. We have got all kinds of armaments out of the Chinese border. We are stocked our arm piles in the Chinese border. So things are much better for India where warfare is concerned. But ultimately, diplomacy has to take its part. Narendra Modi ji just prakar se ja raha hai, and the world over, because as the External Affairs Minister Jaishankar says that your troubles are not our problems until our problems are your problems, and he defined it Indo-China border thing. He said, if the world is not concerned, then we are not concerned about what the US thinks or what the its allies think, including Germany and France and but Great over Britain. here the master stroke was we took Russian crude oil, refined it, and sold it back to Europe. बिल्कुल सर। That was the best thing. That was the best thing going, and what is more, Europe bought it. सबसे Yes, बड़ी बिल्कुल बात है सर। यूरोप ने खरीद लिया। मतलब Sir, रूस it's से economics after all. मतलब इतनी सब शोरगुल मचाने के बाद रूस से आपने क्रूड ऑयल खरीदा, हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान में रिफाइन हुआ, और उसको वापस यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का बना करके हमने वापस यूरोप को बेच दिया, और यूरोप ने खरीद लिया। याद Exactly. रखें कि यूरोप जो है वो पहले इतना प्रोटेस्ट कर रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप वगैरह वगैरह, एंड दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम अस व्हिच इज एक्चुअली रशियन क्रूड ऑयल। बिल्कुल sir, it's economics after all. If you're getting the same quality, cheaper oil from somewhere, they will buy it. And India, if it's the best source, where cheap products and cheap labor is concerned, so India can have the best economics in the world. And so as far as you mentioned Sri Lanka just now, which is most important. सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि now I think perhaps the Sri Lankan government is also realizing that Indian finances come with no strings attached. Exactly, sir. हिंदुस्तान से जो Exactly. पैसा आता है उसमें कोई बिल्कुल। स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होती हैं। हमें आपका पोर्ट नहीं चाहिए, हमें आपकी एयरफील्ड नहीं चाहिए, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए भाई, सिर्फ हमारे पैसे वापस दे देना बस। That's it. Exactly. Bilkul, bilkul. And Indians are more easy to do business with. I mean, they are more congenial. Their good atmosphere is created. And unlike Chinese, there's no bullying involved. There's no bullying that we have given you money. Come on, you have to do this. You have to pay this. You have to work like this. Indians are more friendly. Or give us the Hanumantra port, or we'll take your airfield, or we'll take whatever and whatever. I mean, that comes with Chinese finance. Wherever Chinese finance goes, invariably you find the whichever country that the Chinese
have invested in or have given finance to, it goes on the verge of bankruptcy always, and then the Chinese just take over. Now, Exactly. with Indian money, that has never happened. Bilkul, sir. I mean, the Chinese believe that the Sri Lankans believe that Chinese are bullies. Once you deal with them, you're always on a constant fear that they're going to bully you all the time. Whereas with India, it's a great friendly, there's friendly atmosphere, the exchange of trade and commerce, the exchange of ideas, and the age-old, centuries-old relationship between India and China, dating centuries old with Chera, Chola, Pandya, Chalukyas, and this whole southern part together was dealing with Southeast Asian regions in a big way. This was a huge one chunk, India and Sri Lanka, South India and Sri Lanka. And we have a fantastic Buddhist connection, most importantly. Bilkul, sir. Exactly. The original Bodhi tree is in Sri Lanka. Bilkul, sir. And there was also one Sita Amman temple where Sita was actually kidnapped from Sri Ram and brought here by Ravana. Yes, at Ashok Vatika, yes. Yes, and Ashok Vatika, which has been transformed into a botanical garden here. Yes. Huge acres and acres of land. Oh, you've been there. You've seen it? Yeah, I just saw it yesterday. Oh, wow, wonderful. You lucky man. You lucky man. And at the moment with us, Mr. Sanjay Baperkar of the Aam Aadmi Party. He still says he's with the Aam Aadmi Party. Sanjay Baperkar साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर, नमस्कार. कैसे हैं? बड़ा ठीक हूँ सर. बड़ा धीमा सा आपने नमस्कार बोला. क्या हो गया है? क्या भाई, क्या उदास हैं? क्या हो गया है? क्या सर, नमस्कार. हाँ, ये ठीक है. ये ठीक है. साहब देखिए, ये बताइए कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल साहब हर जगह जा रहे हैं और हर जगह से सपोर्ट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से ये ऑर्डिनेंस जो है, जो एक्ट बन जाएगा, लोकसभा में तो पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में इसको किसी भी तरीके से रोकना है. तो बाकी हर पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया है, तकरीबन हर पार्टी ने, एक कांग्रेस को छोड़ के. तो संजय बापरकर साहब, उसके बारे में जरा बताएं, आप क्या समझते हैं उसके बारे में, बोलिए. देखिए, भाजपा के विरोध में अगर सब विपक्षी दल एक साथ आते हैं तो भाजपा को 2024 में रोकना बहुत आसान है. अगर भाजपा को ये लोग रोकेंगे नहीं तो देश के हालत बहुत बदतर हो जाएगी. देश की आर्थिक नीति, देश की जो कहीं गरीबी है, देश में जो बेरोजगारी है, देश की जो आर्थिक नीति हो या राजनीति हो, ये सब बहुत बीजेपी ने बहुत अलग तरीके का राजनीति किया है, धर्म का राजनीति किया है. तो हर हाल 2024 में उनको रोकना है. तो अगर ऑर्डिनेंस के बहाने विपक्षी अगर एक साथ आते हैं तो आगे की लड़ाई भी आसान हो जाएगी. हमारे नेता अरविंद जी केजरीवाल ने जो विपक्ष को पुकारा है, विपक्ष के नेताओं से बातचीत करते हैं, उनको एकजुट करने का काम करते हैं, वो बहुत बढ़िया काम है और भाजपा को 2024 में रोकने की एक बड़ी पहल है, ऐसा मैं मानता हूँ. लेकिन यहाँ पर कांग्रेस आपके साथ क्यों नहीं आ रही सर, ये तो बताएं. देखिए, कांग्रेस ने आना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस भाजपा को हटाना चाहती है तो कांग्रेस को आना अनिवार्य है. अकेले कांग्रेस भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में जो वोटिंग परसेंट है या जो कांग्रेस के हालात खराब हो गए, कांग्रेस के जो एमपी कितना आए हैं, कांग्रेस की सत्ता कहाँ है, उनको आत्मपरीक्षण की जरूरत है. अगर कांग्रेस विपक्ष के साथ आती है तो ही भाजपा का मुकाबला कर पाएगी, नहीं तो कांग्रेस की वजह से बाकी विपक्षी जो साथ में आएंगे तो विपक्ष कमजोर होने का काम हो जाएगा और फिर इसका फायदा डायरेक्टली भाजपा को होगा. तो कांग्रेस अगर भाजपा के विरोध में लड़ना चाहती है तो उनको ये विपक्षी दलों के साथ आना अनिवार्य है, ये मेरा मानना है. लेकिन संजय बाबरकर साहब, कांग्रेस और कुछ हद तक एनसीपी भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि आप लोग यानी अरविंद केजरीवाल जी बी टीम हैं बीजेपी के, क्योंकि हर जगह पे, अब वो कैसे बी टीम है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसे वो गुजरात का बार बार उदाहरण देते हैं कि गुजरात में आपकी वजह से कांग्रेस की इतनी सीटें कम हो गई, जिसमें सच भी है. देखिए सर,
सर हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपना बल यूज करती है, अपना दांवपेच लगा रखती है। अभी कोई भी पार्टी आएगी तो सत्ता में तो उसको आना है। अभी ऐसा है कि दिल्ली में भाजपा के विरोध में आम आदमी पार्टी थी, एमसीडी में भी विरोध में थी, वहाँ पंजाब में भी जो है वो क्या बीजेपी से गठबंधन तो नहीं किया था। तो हर हाल हम लोग बीजेपी के खिलाफ काम करें, बीजेपी के खिलाफ बात करें, और बीजेपी के लोग, बीजेपी का सरकार ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के कितना पीछे लगा है, हमारे काबिल मिनिस्टर को अंदर डाल रहे हैं, और सीधी सीधी लड़ाई हमारी बीजेपी के साथ में दिखती है। फिर भी अगर कोई बोलता है कि ये आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर बी टीम होती तो हम लोग बीजेपी का कड़ा विरोध नहीं करते, या बीजेपी हमें मुश्किल में डालने का काम नहीं करती। अभी आपने देखा कुछ दिनों के पहले हमारे अरविंद केजरीवाल साहब को भी ईडी का नोटिस आया था, और हमारे जो नेता है मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, वो अंदर है, उनके ऊपर कंजा ज़्यादा कसते जा रहे हैं। और हमारे जो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में अच्छा काम चल रहा है उसको रोकने के लिए अभी उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया है। तो हर संभव बीजेपी आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे हालत में अगर कोई ऐसा बोलता है कि ये कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम है तो ये गलत बात है। प्रदीप बापेकर साहब, आप चाहते हो कि कांग्रेस का सपोर्ट मिले। आज कांग्रेस एक बड़ा एक यूनिट है, 20% वोट शेयर है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का करीबन 1 या 1.5% वोट शेयर है पूरे देश में। तो आज आपको कांग्रेस के साथ मिलकर सब कुछ करना पड़ेगा, मगर आज भी आम आदमी पार्टी, पूरे केजरीवाल हो जो भी हो, बोलते हैं कि कांग्रेस अपने आम आदमी पार्टी का जो आइडियोलॉजीज है, जो पॉलिसीज है, उसको कॉपी पेस्ट करके सब जगह जंग लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत के आते हैं, और एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे कि ये आम आदमी पार्टी के पॉलिसीज है। जैसे 100 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, वुमन पेंशन है, लेडीज फ्री ट्रैवल है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस है ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट को, किसान कर्ज माफा है। ये आपका कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का पॉलिसी है। ये कांग्रेस कॉपी पेस्ट करके अपना पॉलिसी समझ के पूरे लोग, और जीत भी रहे। और बात यह है कि जीत भी रहे, कर्नाटक जीता, सब जगह, अभी राजस्थान में वही मॉडल अपनाया है। तो जब आप एक्यूज करोगे कांग्रेस के कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो आप कैसे समझते हो कि कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगा? देखिए सर, अरविंद केजरीवाल मॉडल जो है दिल्ली में, वो सब लोग देख रहे हैं, पंजाब में भी देखा लोगों ने। तो अगर अरविंद केजरीवाल साहब ने अच्छा एक मॉडल बना के लोगों की सेवा करने का काम शुरू किया है, और वही पॉलिसी अगर दूसरी कोई पार्टी अपना के लोगों का विश्वास जीता रही है, तो सामने वाली सच बात है, वो उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बहुत पुरानी पार्टी है, अगर आम आदमी पार्टी का एजेंडा जो है वो एजेंडा साफ सुथरा है, लोगों के समझ में आ रहा है, कांग्रेस का भी उसके पहले अगर एजेंडा कोई अच्छा होता था या कोई साफ सुथरा होता था, या कांग्रेस ने अपने जो एजेंडे में कोई बातें ऐसी लाती थी, तो जनता उसको जरूर वोट देती थी। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने अपना जो मॉडल लोगों के सामने रखा और लोगों को सही में सेवा देने का काम किया, और लोग विश्वास के साथ ये वोट दे रहे, लोग हमारा पार्टी का सरकार वहां लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही बातें अगर बाकी राज्यों में कोई पार्टी दोहराती है, तो कोई हमारे नेता या बोल सकते हैं कि भाई ये हमारी योजना है और ये कॉपी पेस्ट किया है, तो उसमें कांग्रेस ने बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने बोलना चाहिए कि भाई ये अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल सही में अच्छा है, वो जैसे इंप्लीमेंट दिल्ली में करते हैं, वो जैसा पंजाब में करते हैं, वैसा हम अपने जो बाकी के स्टेट में वहां करेंगे, और वो मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। लोग उनको पसंद देने का काम लोगों का है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस ने ये मानना चाहिए कि अगर समझो विपक्षी दल के अच्छे मुद्दे हैं और वो मुद्दे साथ में लेके अगर समझो लोगों में जाते हैं, लोग अगर वोट देते, तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, और जो बीजेपी को हराना चाहते या बीजेपी को सत्ता से दूर करना चाहते, तो उसका मकसद सफल हो जाएगा। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि भाजपा को कांग्रेस मुक्त भारत करना था। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का
बीजेपी का सपना था, तो वो हिसाब से उन्होंने अपना एजेंडा रन किया। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपना एजेंडा लोगों तक पहुंचाया, लोगों को झूठे वादे किए, लोगों को सपने दिखाए और वो सत्ता में आ गए। तो ये लोग ने कांग्रेस के खिलाफ जो काम किया, कांग्रेस के खिलाफ जो प्रचार किया, और उसके नतीजा लोगों ने उनको सत्ता पे बिठाया है। अगर बीजेपी कैसी फेल हो गई है, ये फेल होना बीजेपी का, अगर सभी विपक्षी दल साथ में लोगों के पास जाके लोगों को बताते हैं, तो लोगों का विश्वास हो जाएगा और लोग विपक्षी दलों को विपक्षी दल के नेताओं को चुन के भाजपा को हरा सकते। जैसे कि हमारे सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के, इन्होंने बोला था कि भाजपा को अगर हराना है, भाजपा को अगर सत्ता से दूर रखना है, तो एक ही फॉर्मूला है कि एक के बदले एक कैंडिडेट खड़ा करो। भाजपा के खिलाफ अगर एक के बदले एक कैंडिडेट खड़ा करते हो, तो ही भाजपा ये चुनाव हारेगी और 2024 में भाजपा सत्ता से दूर रहेगी। तो ये आदरणीय सत्यपाल मलिक जी की बात अगर कांग्रेस के ध्यान में आती है तो ठीक है, नहीं तो बाकी विपक्षी दल अपना अपना काम करेगी, अपना अपना एजेंडा रन करने का काम जरूर करेगी। लेकिन जी 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 प्रदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे? 40% देखो, अब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के करीबन 20% वोट्स लास्ट 2000 इलेक्शंस में था, लास्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस में। अभी उनका कहना है कि करीबन 24%, 25% तक उनके वोट शेयर आ गया है। तो 2019 के हिसाब से भी पकड़ा 20%, अभी 25% तक पहुंचे हुए हैं। तो आप केजरीवाल, आप लोग कहते हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के लायक है, प्रधानमंत्री बनने का मटेरियल है। ये कांग्रेस लेड ऑपोजिशन होना चाहिए। कांग्रेस को बड़ा भूमिका, यानी दे हैव टू बी द हॉर्स, घोड़ा उसको होना चाहिए, काट में सब लोग बैठना चाहिए। बिकॉज बाकी सबके सिंगल डिजिट है। ममता बनर्जी नेक्स्ट है 4% में, मायावती 4% में, बाकी 1-1.5%, बाकी सब 1%, 2%, 1.5%, केसीआर, वाईएसआर, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अरविंद केजरीवाल जी। मगर यहाँ पर नीतीश कुमार जी के पास एक भी एमपी नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। वहां केजरीवाल जी भले पंजाब भी है उनके पास, बोले कि हम प्रधानमंत्री, यानी प्रोजेक्ट उनके कार्यकर्ता प्रोजेक्ट करते कि केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये कैसे होगा जब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा, एक ऑपोजिशन, एक टोटल एक ऑपोजिशन बन के एक कैंडिडेट उसके बीच में सब प्रधानमंत्री बनने का सपने देखते रहेंगे, तो ये कैसे होगा 2024 में बाबू के साथ? इट इज इम्पॉसिबल। नामियर सर, आपकी बात सही है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो बात सामने नहीं आनी चाहिए। अगर सब विपक्षी दल अपने अपनी ताकत लगा के एकजुट होके अगर देश की जनता को अपील करते हैं, और ये जो भाजपा का जो फेल्यूर नीति है, फेल्यूर राजनीति है, वो अगर लोगों के सामने लाते हैं, तो ये जो 1%, 1.5%, 2% का जो वोट है वो तो प्लस हो जाएगा। और उसके बावजूद लोगों में एक ऐसा जनजागृति होगा, लोगों में एक अपील जाएगा कि भाजपा से लोकशाही को जो खतरा है, भाजपा ही जो राजनीति में धर्म नीति लाती है और धर्म के ओर जाके संसदीय लोकशाही का खून करने का काम कर रही है, तो उससे जनता समझ जाएगी कि भाई इसके लिए ये सब विपक्षी दल साथ में आए हैं। वोट ऑफ परसेंटेज ये बढ़ जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर विपक्षी दल अगर साथ में आके चुनाव लड़ेगा, तो जो विपक्षी दल को ज्यादा सीटें आएगी, वो ज्यादा सीट वाला जो पार्टी रहेगा उसका प्रधानमंत्री बन सकता है, या एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग करके वो बाद में बात हो सकती है। लेकिन अभी अगर प्रधानमंत्री के रेस लगी हुई, प्रधानमंत्री के पद के लिए अगर समझो नाम लेके कोई लड़ने आ जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल होगा। आपकी बात सही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करके ये सब विपक्षी दल एक साथ आना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, उनको राजनीति समझ है, वो अच्छा ये मुद्दा टैकल कर सकते हैं। खाली उनका जो अपील है, लोग बाकी जो विपक्षी दल नेता है वो समझने चाहिए। क्योंकि अभी देखो, ये जो दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस लाया है, ये अगर राज्यसभा में फेल्योर होता है, तो मोदी गवर्नमेंट को और देश की जनता को भी ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये मोदी गवर्नमेंट कुछ भी करने आए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए रोकने वाला कोई तो है। तो इसके लिए
ये जो ऑर्डिनेंस का है ये मुझे लगता है कि ये एक परीक्षा है, एग्जाम है। अगर ऑर्डिनेंस रोकने में विपक्षी दल कामयाब होते हैं तो बीजेपी को 2024 में रोकने के लिए आसान हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि बाकी जो दल के नेता है वो पूरे समझदार है। समाजवादी पार्टी के नेता हो, अखिलेश यादव हो या मायावती जी हो या वहाँ की ममता बनर्जी हो, केसीआर हो या नीतीश कुमार हो, सभी जो बड़े बड़े नेता है, हमारे महाराष्ट्र के शरद पवार, उद्धव जी ठाकरे, ये सभी नेता भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहते। तो वो लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ले और प्रधानमंत्री का जो ऑप्शन है, वो प्रधानमंत्री का जो पद है, तो जिस पार्टी के ज्यादा सांसद होंगे उनको प्रधानमंत्री जो है वो बाद में तय किया जा सकता है। ऐसी एक बात कॉमन रखे। लेकिन यहाँ पर एक चीज एक चीज अभी भी सामने नहीं आ रही है बाबरकर साहब। हाँ, वो सामने ये चीज है जो दोनों, प्रदीप जी और मैंने, हम दोनों ने आपसे यही बात पूछी है कि कांग्रेस आपके इतना खिलाफ क्यों है। चलिए, आपने दोनों जगह कांग्रेस को हराया, दिल्ली में कांग्रेस को हराया और पंजाब में भी कांग्रेस को हराया, यानी कांग्रेस की सत्ता थी और आप लोग वहां पर सत्ता में आ गए। अब मेरा ये कहना है सर, आप ये बताएं कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस को आप मनाओगे कैसे? क्योंकि कांग्रेस के बिना तो ऑपोजिशन यूनिटी, ऑपोजिशन एकता नहीं हो सकती। सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे देश में फैली हुई है, पूरा नेशन वाइड फुटप्रिंट जिस पार्टी का है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के बिना ऑपोजिशन यूनिटी नहीं हो सकती और उनका तो साफ है भाई, अरविंद केजरीवाल के साथ हम बात नहीं करेंगे। बताइए बाबरकर साहब। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि देखो, देर इज क्या होता है कि राजनीति में वो बोलते हैं ना कि देर इज एवरीथिंग इज पॉसिबल, फेयर इन लव इन और। अभी ये Fair love, राजनीति का war जो and politics. हाँ, ये पॉलिटिक्स में ऐसा है, ये राजनीति है। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन होता नहीं, कोई किसी का दोस्त होता नहीं। मतलब लंबे समय तक कोई किसी का दोस्त नहीं हो सकता है या कभी लंबे समय तक कोई किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है। अभी एक बात तय है कि भाजपा से देश को बचाना है। अगर अपना भारत देश बचेगा तो ही हम अपने दल लेके, अपनी पार्टी लेके यहाँ जीवित रह सकते। अभी हालात ऐसे, आपने देखा होगा कि संसद का जो उद्घाटन किया उसमें सिंगोल लाके वहां मोदी जी पूरा वहां नतमस्तक होके एक वो जो मठ के साधु संतों को उधर बुलाया। अभी संसद में साधु संतों का कोई काम नहीं था, फिर भी धर्म की ओर राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि संविधान का गला घोटने का काम हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कल ये हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो ये क्या करेंगे, फिर जैसे एक रात में टीवी पे आके नोटबंदी घोषित की, वैसे एक रात में मोदी जी टीवी पे आ जाएंगे और बोलेंगे कि अभी ये हिंदू राष्ट्र है, कल से संविधान खत्म, अभी मनुस्मृति लाएंगे। अगर समझ लो ये मनुस्मृति लाते हैं तो फिर से चातुर्वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण की व्यवस्था आएगी और कोई एक जाति के हाथ में पूरी सत्ता जाएगी और पूरा संविधान खत्म होगा और देश के बर्बादी की शुरुआत होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि ये संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो यूज करने वाले अगर लोग अच्छे रहेंगे तो ये संविधान को अच्छा मतलब है। तो अभी संविधान बचाने की लड़ाई है, देश की बचाने की लड़ाई है, तो आपस में ये लोग तालमेल रखने की आवश्यकता है। कांग्रेस जूनी पार्टी है, कांग्रेस ने इतने साल 70 साल सत्ता में काम किया है, देश के लिए अच्छा काम किया है उनके काल में। अभी उसके बाद लोगों को अगर बदलाव चाहिए तो लोगों ने बदलाव के तौर पे पहले भाजपा को पसंदी दी, अभी वो आम आदमी पार्टी को पसंदी दे रही है। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लिबरली सोचना चाहिए और कांग्रेस ने ऐसा सोचना चाहिए कि भाई देश को बचाने के लिए हम सारे विपक्षी दल एक साथ आने चाहिए और विपक्षी दल हम साथ में आते हैं तो बाद में अगर भाजपा गवर्नमेंट जाने के बाद जो कोई अच्छा पार्टी काम करेगी, जिसके अच्छे एजेंडा हो जाएगा, जिसके अच्छे मुद्दे हो जाएंगे, देश के लोगों को अच्छा सुविधा देने का काम करेगा, देश के हित में कोई निर्णय अच्छे लेंगे, वो पार्टी आगे चलेगी। अभी लेकिन बाबरकर साहब, ये बात तो आपने कह दी जहां तक कांग्रेस का सवाल है और बाकी सब लोगों का सवाल है। आप बताएं आपकी खुद की पार्टी में क्या हो रहा है मुंबई में और महाराष्ट्र में। मतलब वो तो चलो ठीक है चल रहा है,
अब केजरीवाल साहब हर जगह जा रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं और वहाँ उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। केसीआर साहब ने बिल्कुल खुले सपोर्ट किया है, खुलेआम सपोर्ट किया है उनको। ममता बनर्जी ने बिल्कुल खुलेआम सपोर्ट किया है। अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया और बिल्कुल सपोर्ट किया है। एम.के. स्टालिन साहब ने भी बोला है कि भाई हम आपके साथ हैं। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उद्धव जी भी साथ, उद्धव जी तो हैं ही आपके साथ, वो तो दिख ही रहा है। शरद पवार जी ने भी कहा है कि भाई दिस इज रॉन्ग, ये जो ऑर्डिनेंस लेकर के आए दिल्ली में वो गलत है। लेकिन आपकी खुद की पार्टी में क्या हो रहा है वो तो बताएं सर। आज कहां पर खड़ी है आम आदमी पार्टी? मुंबई में और महाराष्ट्र में। मुंबई में जहां आपने इतनी बड़ी जगह बना ली थी अपने लिए, आज की तारीख में मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी पार्टी तितर बितर हो गई है, कोई काम ही नहीं कर रहा अभी। बाबरकर साहब देखो, पॉलिटिकल पार्टी में थोड़े से चढ़ाव उतार होते हैं। अभी मुंबई महाराष्ट्र में नेतृत्व बदल के हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे जो पक्ष श्रेष्ठ है दिल्ली के, उनके पास हमारी मांग रखी है जी। हम ये चाहते हैं कि मुंबई में और महाराष्ट्र में पार्टी अगर बढ़ना है तो महाराष्ट्र के लोगों के हाथ में ये नेतृत्व देना चाहिए, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में मराठी लोगों का ज्यादा संख्या है। मराठी लोगों को अगर नेतृत्व मिलता है तो यहाँ मुंबई में महाराष्ट्र में पार्टी बढ़ेगी। तो यही हमारी मांग दिल्ली के हमारे नेताओं के पास है, मुंबई प्रभारी के पास है, महाराष्ट्र के प्रभारी को भी हम लोग ने चिट्ठी लिखी है। तो वो लोग अभी विचार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में अच्छे संकेत मिलेंगे, कोई बदलाव हो जाएगा। और मुंबई में जो हम लोग ने लोगों के सामने हमारा जो एजेंडा लेके जाने का काम किया है, महाराष्ट्र में हमारा एजेंडा लोगों के पास लेके जाने का काम किया है, बिल्कुल उस एजेंडे पे हम लोग काम करेंगे। मैं ऐसे मानता हूं कि कुछ ही दिनों में हमारे पार्टी के नेता मुंबई और महाराष्ट्र की एक कमेटी में बदलाव लाने का काम करेंगे और अच्छे तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में भी काम होगा। लेकिन बाबरकर साहब, मुझे प्रदीप जी एक छोटा सवाल, इसके ऊपर आपको डिमांड रखने की आवश्यकता पड़ रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर, महाराष्ट्र है ये, महाराष्ट्र में मराठी लोगों को, मराठी मानुस को ये मांग रखने की आवश्यकता पड़ रही है कि आम आदमी पार्टी का, मतलब महाराष्ट्र की आम आदमी पार्टी की इकाई का जो नेतृत्व है वो मराठी मानुस के लिए होना चाहिए, वो मराठी मानुस को होना चाहिए। ये आपको मांग रखने की जरूरत पड़ रही है, मतलब ये कहां की थिंकिंग है, कैसी सोचे? आप मुझे समझाएं जरा बाबरकर साहब। नहीं, इसमें ऐसा है कि ये जो पार्टी है हमारी दिल्ली से आई है, नॉर्थ से पार्टी आई है उभर के। अभी मुंबई में भी ये जो आंदोलन से उभरी पार्टी है, आंदोलन में शुरू से जो लोग थे, वो जो लोग पार्टी में साथ में रहे, शुरू से हम लोग मराठी ज्यादा ये पार्टी में नहीं थे ज्यादा से। हालांकि हमारे एक महाराष्ट्र के सचिव धनंजय शिंदे है और बाकी लोग, ये जो हमारे पूर्व अध्यक्ष और बाकी कुछ लोग थे। लेकिन मुंबई में जो पार्टी का जो गठन था, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो आंदोलन में जो लोग थे अरविंद जी के साथ में, वो आंदोलन में मतलब करप्शन के खिलाफ या लोकपाल के आंदोलन के साथ में, तो वो लोग ही पार्टी का काम कर रहे थे। तो अभी है कि पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाने की जब बात आएगी तो वहाँ के लोकल लोगों को पार्टी का नेतृत्व में शामिल करना चाहिए। ये बात वो नेतृत्व के सामने हमने रख दी, लेकिन वो नेतृत्व को ये बात मंजूर नहीं हुई। इसके लिए ये बात हम लोग दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली के नेतृत्व के पास। प्रदीप जी, बड़ा अजीबोगरीब मसला है प्रदीप जी, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि इंस्टेड ऑफ भगवंत मान बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, देयर शुड बी सम मेनन, some BS Menon should be the chief minister of Punjab। ये क्या है, मतलब मेरी समझ के बारे में प्रदीप जी, I don't think Arvind Kejriwal is really serious about Mumbai and Maharashtra। yes, because जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, it's not that Arvind Kejriwal, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी उभर कर आए इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना को साथ में लिए, फिर बहुत सारे अच्छे लोगों को साथ में लिया, और फिर जब पॉलिटिकल एम्बिशंस हो गए तो सबको त्याग कर दिया। तो आज भी लोग भूले नहीं है कि अन्ना हजारे को, महाराष्ट्र के लोग भूले नहीं है कि अन्ना हजारे को जिस प्रकार से इस्तेमाल करके उन्होंने फेंक दिया है। तो आज भी जितने महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी लोग हैं, वो एक ही चीज बोलते हैं कि जो अन्ना के नहीं है वो महाराष्ट्र के क्या होगा, मुंबई के क्या होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी जब तक ये दिमाग से लोगों का निकाल नहीं पाएंगे कि अन्ना हजारे को उन्होंने धोखा दिया है,
तब तक महाराष्ट्र में सर उनका एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अन्ना हजारे कुछ भी हो, एक फैक्टर है। अन्ना हजारे के कंधे पर बैठकर केजरीवाल ने पॉलिटिक्स किया है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसके बाद पार्टी निकाले और फिर अचानक से अन्ना को भेज आउट करके वो खुद ही हर चीज संभाल रहे। He has got a lot of explanation to do and the Marathi figure, एक तो मराठी है कि कोई ढंग के मराठी लोगों को लीडरशिप को उन्होंने उभरने नहीं दिया यहाँ पर, और बापेकर जी, राठौड़ जी जैसे 4-5 लोग उभर के आए थे जो काम करते, संघर्ष कर रहे थे। इवन नाउ आई थिंक इलेक्ट्रिक के एडवोकेट संदीप काटके वगैरह वगैरह वो अच्छे नेतृत्व है, बट उनको वो शायद वी फील पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि उनको दरकिनार करके जिस प्रकार से काम हो रहा है, आई डोंट थिंक इसका बड़ा कुछ असर आम आदमी पार्टी कर पाएंगे मुंबई में, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट। आप देखो आज के तारीख में माइनॉरिटीज पूरे के पूरे कांग्रेस की तरफ घूम के आए हैं, और कांग्रेस बार बार एक से एक प्रोग्राम लेके आ रहे पब्लिक के सामने। दलित हो, महिला हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, इनको जोड़ने का जबरदस्त एक कार्यक्रम पूरे 24/7 365 डेज पैन इंडिया लेवल पर उन्होंने कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका जो एक भरोसा या उनको सपोर्ट सिस्टम जो है रीजनल पार्टीज का, उनका जरूरत नहीं पड़ेगा आई डोंट थिंक। और सबसे खास अरविंद केजरीवाल को दरकिनारी करेंगे, बिकॉज अरविंद केजरीवाल ये समझता है कि वो कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव है। तो इट्स वेरी ब्लीक फॉर आम आदमी पार्टी अनलेस दे डू रिवैम्प, रीऑर्गेनाइजेशन ढंग से करे, मराठी लीडरशिप को यहाँ पर प्रोत्साहित करे, आगे बढ़ाए। तब तक आम आदमी पार्टी को बीएमसी या पूरे महाराष्ट्र तो डिसबैंड कर ही दिया, नहीं हो पाएगा। आई डोंट थिंक। बाबरकर साहब बताएं, प्रदीप जी ने कुछ बोला है, आप बताएं जरा उसके बारे में, जरा अपने विचार रखें। उसमें सर एक दो बातें हैं। पहले तो अन्ना हजारे जी के बारे में मैं बोलूंगा जी, क्योंकि आंदोलन खत्म होने के बाद जब पार्टी की शुरुआत करनी थी, तब अन्ना हजारे जी ने बिल्कुल बोला कि भाई मुझे राजनीति पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर राजनीति पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है तो वो चुप हो गए। फिर अरविंद जी के साथ में उनके साथी मिलके उन्होंने पार्टी बनाई और अपना पार्टी का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि भाई अन्ना हजारे को अरविंद जी ने कोई धोखा दिया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे को प्रेसिडेंट बना के अगर आम आदमी पार्टी बनाई होती और आम आदमी पार्टी की सत्ता आने के बाद अगर अन्ना हजारे जी को पद से निकाला होता या अध्यक्ष पद से हटा दिया होता, तो ये बात आप बोल रहे तो सही थी कि भाई अन्ना हजारे को धोखा दिया। दूसरी बात, अन्ना हजारे जी की क्रेडिबिलिटी भी अभी देखो, क्योंकि वो कांग्रेस के सत्ता में ही जग जाते हैं। कांग्रेस की सत्ता, कांग्रेस विपक्ष में आ गई, फिर अन्ना हजारे सो गए। अभी जो बीजेपी में जो हो रहा है, जो गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके खिलाफ कोई अन्ना हजारे बात नहीं कर रही है। भाजपा का जो अभी ईडी का, सीबीआई का, ये जो सरकारी संस्थानों का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में भी अन्ना हजारे कुछ बोल नहीं रहे। अभी वो पूरे आराम से सो रही है। जब कांग्रेस की सत्ता आएगी तो ही वो जग जाएंगे और वो अनशन पे बैठेंगे। तो ऐसा अन्ना हजारे जी के बारे में भी ऐसा है। दूसरी बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं कि अरविंद जी केजरीवाल का ध्यान नहीं है। अभी देखो कि भाजपा ही जो लोक नियुक्त सरकारों को काम करने नहीं दे रही है। अभी ऑर्डिनेंस से लाके बीच में ही सवाल खड़ा किया, तो उसके पीछे अरविंद जी और हमारे नेता काम करे, उसके खिलाफ काम करे। अभी मुंबई महाराष्ट्र में उनको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपने जो कांग्रेस का जिक्र किया, हम भी चाहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में, मुंबई में कोई भी दलित के भी इशू हो, कोई भी इशू हो, वो आम आदमी पार्टी के तरफ से उठाने चाहिए। जैसे कि अभी नांदेड़ में एक अक्षय भालेराव, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई और गांव में जुलूस निकाला, इसके लिए जातिवादी लोगों ने उसकी हत्या कर दी। आज दादर में हम लोग ने उसके लिए प्रोटेस्ट रखा था, मैं वही प्रोटेस्ट अटेंड करके आया हूँ जी। तो सभी सामाजिक संगठन से हम लोग को काम कर रहे हैं। तो ऐसे इशू भी आम आदमी पार्टी ने लेना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद जी केजरीवाल ने मीडिया के सामने बताया है, सभा में बताया है कि बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए हम हर हाल, मतलब जान की बाजी लगाएंगे, ऐसे अरविंद जी ने लोगों को आश्वासित किया है। तो बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर है, जो दलित है,
उनके ऊपर जो अन्य अत्याचार होता है उसके खिलाफ भी पार्टी ने आगे आके लड़ना चाहिए, वो भी काम वहाँ यहाँ होना चाहिए। चलते तो चलते बापेरकर साहब, चलते चलते आपसे ये सवाल, व्यक्तिगत सवाल है, आपका जो सस्पेंशन था, आपको जो निलंबित किया गया आम आदमी पार्टी से प्रीति शर्मा मेनन जी ने, क्या वो वापस ले लिया गया है? उसका क्या स्टेटस क्या है उसका? उसका वो तो वापिस नहीं लिया है, लेकिन ऐसा है कि हमारे जो मुंबई प्रभारी है, महाराष्ट्र के प्रभारी है, उन्होंने थोड़ा वेट एंड वॉच ऐसा हमें थोड़ा सा एडवाइस दिया है। और दूसरी बात है कि मुंबई महाराष्ट्र की कार्यकारिणी भी डिसॉल्व की है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र की कार्यकारिणी डिसॉल्व करके उन्होंने एक हमें संदेश भी दिया है कि पार्टी का गठन फिर से होने वाला है। और हमारा जो प्रीति जी शर्मा जी ने जो लेटर दिया है, वो तो हमने लिखा है कि भाई हमारे जो आम आदमी पार्टी की जो घटना है वो घटना के खिलाफ है, और कोई जो कुछ प्रोटोकॉल होता है या घटना के मुताबिक कोई नोटिस होता है या कोई समिति होती है, उसके सामने वो कुछ रखी नहीं है बात। तो अपने ही तरीके से उन्होंने जो ये घटना विरोधी जो नोटिस दिया है या निलंबन का आदेश जो किया है, वो सरासर गलत है। उसके लिए हम लोग ने हमारा पक्ष भी रखा है पार्टी के सामने, और उसके ऊपर विचार होने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आने वाले समय में उसके ऊपर कुछ विचार होगा, ऐसे हमें आशा है। संजय बापेरकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपकी जो लॉयल्टी है आम आदमी पार्टी की तरफ, वो देखते ही बनती है। इतना ज्यादा किसी के साथ शोषण हुआ हो, इतना ज्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ हो, उसके बावजूद आपने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है, इसके लिए आपको साधुवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार। थैंक यू सर। और वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। थैंक यू। Right, and Sanjay Baperkar साहब still a loyalist, still very much. Pradeep ji, he is still Arvind Kejriwal loyalist. He can't hear anything against Arvind Kejriwal. मतलब वो अन्ना हजारे के खिलाफ बोलने को तैयार हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, सीधी बात है। Wonderful. But over the long period of time, I don't think in the alliance, the Congress